Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 13th September 2020. So let us see which are the important articles today. As we know that it is Sunday, तो दो पेज हम बोलते हैं कि important होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला और FAQ पेज 11 and 12. So some important developments from these two pages along with some other developments. Let us try to take input for our examination one by one. First article on page number 12 FAQ. The context of the article, it is again let's say it was in news that the Oxford vaccine candidate, the trials of phase 3 trials were put on hold because some let's say what you can say vaccine volunteer has developed some complications or the side effects of that vaccine. Again they are resumed now after we can say 2-3 days. तो एक्चुअल में ये ड्रग्स और वैक्सीन ट्रायल्स कैसे होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 क्या होता है, that in detail we need to know for our mains examination as well as prelims examination. So let us try to understand what are these phases, how the vaccine and drugs are tested in trials. Okay, so broadly both of them follow 4-stage process or phase 1, 2, 3 and 4 trials. Okay, so before entering into phase 1 trials or human trials जिसको बोलते हैं ये सारे एनिमल ट्रायल्स किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इट इज़ चेक्ड its safety is checked for variety of animals like mice, rabbits and hamsters or we can say primates which mirror human physiology. ठीक है, तो जैसे चिंपांजी है या फिर एरंगोटून होता है, तो ऐसे देखा जाता है कि वेदर दे आर हैविंग एनी वी कैन से दैट सेफ्टी प्रॉब्लम्स. उसके बाद दे आर लेट्स से दे एंटर इनटू फेज 1 ट्रायल्स वेयर इन स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स विथ द स्मॉल डोसेस इज मॉनिटर्ड. यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 to 50 कैंडिडेट्स होते हैं, ह्यूमन कैंडिडेट्स, उनके ऊपर ये ड्रग का एप्लीकेशन किया जाता है. बट इन फेज 1 वेरी स्मॉल डोसेस आर गिवन एंड द मॉनिटरिंग इज टेकन एंड फीडबैक इज टेकन. Then the safety is checked and then the regulatory authority gives approval for phase 2 trials. Okay, so in phase 2 trials what happen is the group of volunteer is now increased to hundreds of people and they are selected for particular we can say that trial. यहाँ पे actually क्या देखा जाता है that researchers try to determine what dosage would be necessary for it to take effect or produce desired response. Now in case of COVID-19, what is the desired response? Desired response, it says that inoculation that should be triggered a desired level of antibodies and sufficient cell response in terms of T cells stimulation. ठीक है, तो ये होना चाहिए, हम बोलते हैं कि एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में. देन इट एंटर्स इनटू फेज 3 ट्रायल्स. अभी बहुत सारे वैक्सीन जो है वो फेज 3 ट्रायल्स में है, इंक्लूडिंग दिस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन. Now in this trial the vast variety of people along at the multiple locations, thousands of people or volunteers or even patients are now the let's say tested with the drug or we can say vaccine. In case of drug at this stage it is compared with existing standard of care or drugs. ठीक है, और उसकी एफिकेसी देखी जाती है. इन केस ऑफ वैक्सीन देर इज नो एग्जिस्टिंग वैक्सीन, तो उसके लिए वो क्या किया जाता है कि फेज 2 ट्रायल का ही एक्सपांडेड वर्जन है ये. ठीक है, तो लार्जर वर्जन ऑफ फेज 2 ट्रायल्स होता है वैक्सीन में. नाउ दीज फेज 3 ट्रायल्स आर हेल्ड एट मल्टीपल लोकेशन टू कैप्चर द डेमोग्राफिक वेरिएबिलिटी. जैसे हम देखते हैं कि अभी जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है वो अलग अलग जगह पे यूके में, यूएस में, साउथ अफ्रीका में और इवन इंडिया में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, फेज 3 ट्रायल्स. फाइन. So at the same time there is double blinded and randomized trials. Now in double blinded and randomized trials क्या होता है कि किसको प्लासेबो दिया जा रहा है और किसको एक्चुअल में वैक्सीन का शॉट दिया जा रहा है, दैट इज़ नॉट नोन टू एनीवन इंक्लूडिंग डॉक्टर्स. ठीक है, तो उसका ये जो इम्पैक्ट होता है या साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एज द सैम्पल स्पेस इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट इज़ नाउ मॉनिटर्ड एंड फीडबैक इज टेकन. ठीक है, एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ मल्टीपल लोकेशन दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज. ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. आफ्टर दिस फेज 3 जनरली द ड्रग एंड वैक्सीन दैट क्लियर्स फेज 3 यूजुअली अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री. फेज 4 ट्रायल्स क्या होता है, वो फेज 4 ट्रायल्स नहीं होता है. बेसिकली फेज 4 इज फेज आफ्टर गिविंग द लाइसेंस और वी कैन से द कमर्शियल स्टेज. अब ये कमर्शियल स्टेज में क्या होता है कि कंपनी स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग दिस
vaccine or drug at commercial level, and once the product goes into the field there is post marketing surveillance, इसको बोला जाता है फेज 4. ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस. यहाँ पे देखा जाता है कि दैट द कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश द पीरियडिक डेटा ऑन टू द ड्रग रेगुलेटर. ठीक है, कोई अगर जहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह अगर मिलते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये डेटा दिया जाता है ड्रग रेगुलेटर. सो दीज आर द 4 ट्रायल्स वी नीड टू नो अबाउट देम. ऐसे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस वेरियस फेजेस ऑफ वैक्सीन एंड ड्रग ट्रायल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू कोविड-19. तो आपको ये रेफरेंसेस देने हैं फेज 2 फेज 3 में क्या हो रहा है कोविड-19 का. नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अगेन रिसेंटली वी नो दैट द स्क्रैमजेट इंजन टेस्टिंग वाज डन एंड दिस वाज सक्सेसफुल फॉर इंडिया. ऐसे बाकी 3 ही कंट्री है, यूएस, रशिया एंड चाइना. नाउ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एलाइट क्लब ऑफ दिस कंट्रीज टू हैव सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. Now what happens is in this technology is that in scramjet engine air from atmosphere is rammed into engine's combustion chamber at supersonic speed. ठीक है, more than Mach 2. तो Mach 1 के ऊपर जो होता है up to Mach 5 we can say that is supersonic speed, और Mach 6 and above it is called as hypersonic speed. ठीक है, तो in the chamber the air mixes with the fuel and ignites supersonic combustion. With the cruiser's flight will be at hypersonic speed of Mach 6 to 7. Now this is called as supersonic combustion ramjet. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में स्क्रैमजेट किया गया है. ठीक है, तो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट या स्क्रैमजेट बोला गया है. दिस इज कम्प्लीटली इंडिजीनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी. DRDO के लैबोरेटरीज जो है वहाँ पे वो डेवलप हुआ है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? A very important we can say development in terms of defense technology. Mastering the air breathing scramjet technology will lead to development of hypersonic missiles, faster civilian air transportation and facilities for putting satellites into orbit at lower cost. At the same time developing more critical technologies and materials. So these are some important we can say significance of this testing or validation of this technology, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो स्क्रैमजेट. ठीक है, DRDO ने डेवलप किया हुआ. फाइन. सो दिस इज इन न्यूज़ इन लास्ट वीक. तो ये आपको मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए. इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मेंस में आपको सिलेबस में टॉपिक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सिंगापुर कन्वेंशन दैट हैज़ कम इनटू फोर्स नाउ. What is Singapore Convention? Also known as United Nations Convention on International Settlement Agreements resulting from mediation. Now whenever we generally talk about ADR mechanism, ठीक है, alternate dispute redressal mechanism, the Singapore has the best ADR mechanism developed, and therefore yes, Singapore along with other United let's say UN Commission on Trade Law, they have together developed this or let's say come together to develop this treaty. Now this is the first UN treaty to be named after Singapore. So इसका significance क्या है? Significance ये है, the harmonized and simplified enforcement framework under the convention translates to savings in time and legal cost. ठीक है, और इसकी ये जो mediated settlements of corporate disputes involving business in India and other countries that are signatories to convention. तो जो business disputes होते हैं दो countries के बीच में, तो वो डिस्प्यूट्स जो है अंडर दिस कन्वेंशन देयर विल बी लीगल गाइडलाइंस प्रोवाइडेड, और उसकी वजह से अब टाइम कम लगेगा और कॉस्ट कम होगा डिस्प्यूट रिड्रेसल का. तो मेडिएशन जहाँ पे होता है यानी कि थर्ड पार्टी मेडिएशन होता है. ओके, एंड दैट इज वी कैन से दैट पार्ट ऑफ ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. Fine. So this is a very good development. It would boost the India's ease of doing business credential. So that is again the plus point. So when we talk about let's say ease of doing business, और या फिर अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड, सो हाउ द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म देयर इन इंडिया, तो वो स्मूथन करने के लिए ये सिंगापुर कन्वेंशन अभी बहुत अच्छा रहेगा. एट द सेम टाइम फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सिंगापुर कन्वेंशन. तो UN कन्वेंशन बहुत सारे हैं, बट अब पता होना चाहिए स्पेसिफिक UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन. सो फर्स्ट आंसर.
Moving on to next article, India China standoff cast a shadow on Nathula border trade. Generally जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है तो एक साल में एक बार ज़रूर नाथुला बॉर्डर ट्रेड के ऊपर फ्रंट पेज पे आर्टिकल रहता है हमेशा, ठीक है। तो नथुला जो है बॉर्डर पोस्ट है इंडिया चाइना के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में चुंबी वैली जो है चाइना का, वहाँ पे कनेक्ट करता है। द रीजन इज ऑल्सो नियर टू डोकलाम। तो भूटान के यहाँ पे जो डोकलाम प्लेटू है, तो वो डोकलाम प्लेटू इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया चाइना एंड भूटान। तो वहाँ से बहुत नज़दीक है ये नथुला। फाइन। सो व्हाट द आर्टिकल इज इट इज टॉकिंग अबाउट, here you can talk about, let's say, some important aspects like this year because of COVID-19 what happened is the border trade was cancelled, ठीक है। तो मार्च में ही उन्होंने बंद कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। नाउ द फियर ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया चाइना अलोंग LAC दैट ऑल्सो लेट्स से मे अफेक्ट द बिजनेस नेक्स्ट ईयर टू, ऐसा बोला जा रहा है। ट्रेड एट नथुला जो है इतना एलिवेशन है वहाँ पे, तो ये 2006 में शुरू हुआ था चेक पोस्ट वहाँ पे बॉर्डर ट्रेड जो है, यू कैन सी हियर। एंड इनिशियल ईयर्स में वो काफ़ी कम था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, नाउ इट हैज़ ग्रोन टू मल्टीपल्स। ये कब होता है? मई टू नवंबर में होता है, 4 days a week होता है, एंड ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडर्स आर अलाउड फॉर बाय एंड सेल, ठीक है। तो ट्रेड वॉज सस्पेंडेड इन 2017 आफ्टर डोकलाम स्टैंड ऑफ। यहाँ पे डोकलाम स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना हुआ था, तो वहाँ पे उस बार सस्पेंड कर दिया था बिकॉज दिस इज़ वेरी नियर। डोकलाम इज़ अबाउट 56 किलोमीटर फ्रॉम द नथुला। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर ट्रेड एट नथुला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। इंडिया चाइना रिलेशंस अभी टेंस है, तो आप ये एक एग्जांपल उसमें बता सकते हैं कि हाउ द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ट्रेड, बॉर्डर ट्रेड कैन लेट्स से एक्ट एज अ वी कैन से बैकग्राउंड और फाउंडेशन ऑफ positive relationship between two countries. So while the volume of trade may be huge, only 200 traders are involved. Political observers believe that the trade at Nathula has the unique symbolism and underline the idea of Sikkim which shares border with China, Nepal and Bhutan. 3 countries के साथ ये border करता है और being the peaceful and tranquil state. छोटा सा state है फिर भी peaceful state है, 3 countries के साथ border है तो भी, ठीक है। एट द सेम टाइम मोर देन ट्रेड इट इंश्योर द डायरेक्ट पीपल टू पीपल लिंक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी कैन टॉक अबाउट इन द बायलैटरल रिलेशनशिप। फाइन। सो इस तरीके से मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ 3 different countries? सो देर आर ओनली 3 states विच शेयर बॉर्डर विथ 3 different countries। अब इसमें से कौन सा नहीं है? रादर हम बोल सकते हैं कि मिजोरम नहीं है। मिजोरम शेयर्स ओनली बॉर्डर विथ 2 countries, ठीक है। तो वो कौन से हैं? बांग्लादेश एंड म्यांमार। सो अदर 3 states दे शेयर बॉर्डर विथ 3 countries, 3 different countries। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, अभी हमने देखा कि चाइना एंड नेपाल, एंड वी कैन से दैट हियर विथ सिक्किम भूटान, ऐसे 3 कंट्रीज है इनके साथ शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें आप देख सकते हैं चाइना एंड नेपाल इज कॉमन, सॉरी चाइना एंड भूटान इज कॉमन, एंड हियर म्यांमार इज न्यू कंट्री। या फिर अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो चाइना एंड नेपाल इज कॉमन, सॉरी नेपाल एंड भूटान इज कॉमन हियर। ठीक है, तो एंड न्यू कंट्री इज बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसे 3 कंट्रीज के साथ ये मैच करते हैं। 3 स्टेट्स जो है बॉर्डर है। मिजोरम इज द कंट्री वेयर इट शेयर्स बॉर्डर विथ 2 countries। तो मैपिंग से रिलेटेड इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट द आर्टिकल इट इज टॉकिंग अबाउट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. It was recently in news because the licenses of 13 NGOs has been suspended under FCRA this year. और ये FCRA होता क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं है, हम ये सारे आर्टिकल से इसमें इनपुट ले सकते हैं इस तरीके से। So key points we can talk about in this article. What is FCRA? So FCRA regulates foreign donations
which is, we can say that first enacted was in 1976, amended comprehensively in 2010. It is applicable to all association groups and NGOs which intend to receive the foreign donations. सबके लिए compulsory है, and there is mandatory registration under Ministry of Home Affairs. तो वहाँ पे register करना पड़ता है FCRA के अंडर. Registration initially valid for 5 years and that can be renewed subsequently. तो ये कुछ facts आपको पता होने चाहिए. They are also supposed to file the annual returns according to Income Tax Act. Compulsory है. And they have to operate the accounts either in the nationalized or private banks. तो ये भी important है. ठीक है, ये recent guidelines है 2015 के बाद में, ये दो जो है. Who cannot receive the foreign donations? Members of legislature, political parties, government officials, judges, media persons. They are prohibited from receiving the foreign contributions. However, in 2070, MHA, जो Ministry of Home Affairs through the Finance Bill route amended this FCRA 1976 law by paving way the let's say for foreign contribution to political parties. ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने अलाउ कर दिया है. How else one can receive the foreign funding? थ्रू द प्रायर परमिशन मेथड. तो प्रायर परमिशन के लिए समझो किसी एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे इंडिया में एक प्रोजेक्ट है, उसको फंड करना है एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, तो उनको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है और कितना अमाउंट और कब देना है वो उनको उसमें बताना पड़ता है अच्छे से. फाइन. यस. A letter of commitment from the foreign donor specifying the amount and purpose is also required. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दूसरा मेथड क्या है. When is the registration suspended and cancel? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये सस्पेंड होता है और क्या होता है. ये देख सकते हैं आप कि अब तक पास्ट में कितने सस्पेंशन हुए. अकॉर्डिंग टू MHA डेटा सिंस 2011, मतलब 10 साल में पिछले, रजिस्ट्रेशन ऑफ 20,664 एसोसिएशन वाज कैंसल्ड फॉर वायलेशंस. ठीक है, मिस यूटिलाइजेशन या फिर ये जो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कितना दे रहे हैं, फॉरेन फंडिंग कितना हो रहा है, उसकी वजह से उनके लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं. सो यू कैन मेंशन सच फैक्ट. पॉलिटी में देख सकते हैं पिछले 1 या 2 साल पहले ही FCRA के ऊपर एथिक्स में एक केस स्टडी आया था, फॉरेन फंडिंग. ठीक है, NGO था, सम पर्सन वांट्स टू लेट्स से ओपन द NGO इन इंडिया, और वो फॉरेन फंडिंग के रिलेटेड कुछ वहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, तो वहाँ पे FCRA न्यूज़ में था उस साल बहुत ज़्यादा. तो ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेड UPSC आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ वी कैन से करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स. तो आपको ये पता होना चाहिए कि FCRA के बेसिक्स क्या है. फाइन. तो इस तरीके से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए. इट इज़ मैंडेटरी फॉर NGOs. यस, इट इज़ मैंडेटरी, हमें पता है, टू रजिस्टर. ठीक है, तो उसके बाद मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आर अलाउड बट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाउड टू रिसीव द फॉरेन फंडिंग. तो ये उल्टा है, गलत स्टेटमेंट है. अदर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आर नॉट अलाउड व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड नाउ आफ्टर 2017. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 1 only. Fine. So these were the important developments from today's newspaper. For further information on editorial discussion ED classes, wherein in-depth analysis of mains related articles is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.